Very good morning, friends. Hi, how are you? I hope you all are well at home and safe. Right? The purpose of this online classes is that you can save at home as well as didn't lose any portion because this 12th standard are very crucial for you, right? So in last few classes we can discuss about what is meant by alcohol, what is meant by phenol, what is meant by ether, how alcohol are classified, right? How phenol is classified, how ether is classified, what are the different method of preparation in which we can see last class we can see two method, that is preparation of alcohol from alkyl halide as well as alkene, where we can see one important rule, that is Markovnikov rule. Today we can discuss about third method of preparation of alcohol, that is hydroboration, oxidation of alcohol. Now today we can discuss about hydroboration, oxidation of alcohol. Right. So this two topic we have to cover in this session or in this video, that is hydroboration, oxidation of alkene, and second one is reduction of carbonyl compound. Right. Please subscribe my channel, YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry by Sanjay Roy. Right. So here we can start with our concept, that is hydroboration, oxidation of alkene. Now what is meant by hydroboration? Hydroboration means what? Hydroboration are nothing but it is the addition of, here you can see the definition. Hydroboration, oxidation of alkene means what? When alkene reacts with diborane, undergo addition reaction, that step is called as hydroboration to give a trialkyl borane. It gives a trialkyl borane which on oxidation with hydrogen peroxide in alkaline medium give alcohol, right? So this is the exact definition, right? What happen in hydroboration oxidation reaction, you just go through once this definition, then we can discuss the reaction and finally we can discuss mechanism of reaction. So here we can start hydroboration. For the hydroboration we have require alkene as well as diborane. First we can discuss about diborane is act as a reagent, right? So diborane means what? Di means go. So here diborane are nothing but क्या है? B2H6. It is called as diborane. Now when we dissociate this diborane can be dissociate as BH3. We know that this diborane having BH. Now this is the structure of diborane. Now suppose we can break this diborane from here. After breaking this diborane, we can obtain two molecule of BH3. Right? क्या मिलेगा अपने को? We can obtain two molecule of BH3. Now this BH3 when dissociate, now you know that boron can belongs to group number 13, means before aluminium, and that's why hydrogen is more electronegative compared to boron, right? And when we break the pH bond, the negative charge can appear on hydrogen and positive charge appear on boron. So अगर हम लोग इसको dissociate करते हैं तो कैसे dissociate होगा? H minus plus BH2 plus. इतना तुमको ध्यान में रखना है रिएक्शन करने के पहले. Now अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे. Suppose we just take one unsymmetrical alkene CH3CH double bond CH2. हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? अल्कीन लिया हुआ है. Now when this alkene reacted with B2H6, इससे रिएक्ट करेंगे B2H6. Now this diborane when reacted with the alkene, it can form trialkyl borane. क्या फॉर्म करेगा?
trialkyl borane. The structure of trialkyl borane is CH3CH2 CH2 by 3B. It is called as trialkyl borane. Right. Now this trialkyl borane on oxidation. Now this first step is called as hydroboration. This first step is called as hydroboration. Now next step is called as oxidation. For oxidation, we can use the reagent, right? We can use hydrogen peroxide in presence of OH. OH minus means it is a base, alkali medium. It is a hydrogen peroxide. We can obtain CS3, CH2, CH2, OH plus BOH by 3. Right? We can get BOH by 3 plus BOH by 3. Right. Now this reaction is called as hydroboration oxidation. This reaction is called as hydroboration oxidation, where we can obtain alcohol. Now, if you balance the reaction, here 1 molecule of diborane can convert 6 molecule of alkene into 6 molecule of alcohol. Right? इसमें convert करता है. It can convert 6 molecule of alkene into 6 molecule of alcohol. Right? Here, if you want to balance, here 2 because we can use 2 boron. यहाँ पे 2, यहाँ पे balance. Now, what is the beauty of this reaction? The hydroboration oxidation reaction, इसको simply में अगर हमको याद रखना है, it is nothing but addition of water according to anti-Markovnikov rule. Right? It is addition of water according to anti-Markovnikov rule. अब ये कैसे होगा हम लोग उसको explain करेंगे. Now suppose we just compare previous reaction, that is preparation of alcohol from alkene by hydration, right? उसको हम लोग देखें, in presence of concentrated sulfuric acid हमने reaction किया था, right? उसी reaction को अगर मैं देखता यहाँ पे suppose CH3CH double bond CH. ना इसके मैं दो reaction करता हूँ. ठीक है, इसके अगर मैं दो रिएक्शन करता हूं, फर्स्ट रिएक्शन मैं इसको ट्रीट करता हूं H2O in presence of 50%. Here we can use H2O in presence of 50% H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएजेंट लेता हूं. सेकंड रिएजेंट जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, B2H6 in presence of H2O2 and OH minus. राइट, यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्कीन को हमने इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया और अल्कीन को हमने इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया. राइट, इन फर्स्ट केस वी नो दैट व्हेन यू डिसोसिएट वाटर वी कैन प्रोड्यूस H प्लस माइनस एंड क्या मिलता है, H प्लस एंड OH माइनस. राइट, सो अगर मैं यहाँ पे इसको इसमें ऐड करता हूँ तो वी नो दैट H2 on dissociation गिव H प्लस OH माइनस. क्या देगा, H प्लस OH माइनस. नाउ ये OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, दिस OH माइनस अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वाटर ऑन डिसोसिएशन कैन प्रोड्यूस H प्लस OH माइनस. राइट, नाउ यहाँ पे क्या होगा, दिस OH, this alkene is unsymmetrical and this water molecule is unsymmetrical, means here we can use which rule, Markovnikov rule, means the negative part of reagent attack on that carbon atom of double bond which consists of less number of hydrogen. तो यहाँ पे क्या होगा, this OH minus can attack on this carbon and this CH2 can take H plus. ये body का shift हो जाएगा, means we can obtain the product CH3, CHOH and CH. राइट, इसका नाम क्या आएगा,
प्रोपेन टू ऑल, क्या नाम आएगा, प्रोपेन टू ऑल, राइट। नाउ सेकंड रिएक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। इफ यू अंडरगो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेम रिएक्शन देखो, अगर हमने इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया इसके साथ तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला, CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पे क्या मिला, प्रोपेन 1 ऑन। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग एंटी मार्कोनी का रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल मतलब क्या होता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड or oxygen, the negative part of reagent can attack on that carbon atom of double bond which consists of more number of hydrogen. So अगर हम लोग मार्कोनी का लगाते हैं तो OH माइनस किस पे अटैक करेगा, जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब OH इसके पास जाएगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को कैसे याद रखना फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैन टेक्स प्लेस, द एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का। और अगर हम लोग सिंपली हाइड्रेशन करते हैं तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल कैसे एक्ट होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे भी मार्कोनी का रूल ही फॉलो होता है, बट इट लुक लाइक्स इट कैन फॉलो एंटी मार्कोनी का रूल, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट कैन फॉलो मार्कोनी का रूल। और ये आपको कब समझ में आ जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे। Dear student, mechanism are not included in your syllabus, so you just go through once कि mechanism क्या होता है, right? mechanism कैसे होता है उसको तुम एक बार देख लो, मैं तुमको एक पीपीटी दिखाता हूँ, उसको तुम लोग जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, उस मैकेनिज्म को देखो, मैं ब्लैक बोर्ड पे भी बताऊंगा एक बार, राइट। सो आई कैन शेयर वन पीपीटी विथ यू। You just go through the mechanism. मैं सिर्फ मैकेनिज्म पे फोकस कर रहा हूं अभी। Here, you just observe the mechanism. पहले रिएक्शन दिया हुआ है, बाद में उसका मैकेनिज्म, हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे। So just see the mechanism of reaction कि mechanism क्या होता है। So we just take the example. Now we can see the mechanism, exact mechanism of that reaction, how reaction can be carried out, right? So basically we can start with the mechanism. So for mechanism, first we can dissociate this B2H6 molecule. हमको पहले क्या करना है, B2H6 को हम लोग dissociate करेंगे। B2H6, it on dissociation, it can give BH3. Previously we can see. Now this BH3 when we dissociate, it can produce H minus plus BH2 plus. So this is the exact dissociation of B2H6 molecule. B2H6 on dissociation produce two molecule of BH3. BH3 on dissociation to H minus and BH2 plus, that is nucleophile, and it acts as a electrophile. Right now, because boron is a less electronegative compared to hydrogen. Now we take our alkene CH3 CH double bond CH2. When this alkene reacted with BH3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं H minus plus BH2 positive. Now here you can apply Markovnikov rule. Markovnikov rule क्या बोलता है, रिएजेंट का नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, एक चीज ध्यान दो इधर कि ये नेगेटिव पार्ट है, मींस H माइनस कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये कार्बन किसको लेगा, BH2। तो उसको लेने के बाद हमारा पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, we can get CH3 CH2
CH2BH। तो ये क्या हो गया, मोनो अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, बोरॉन के पास और दो हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको कंपेयर करो BH3 के साथ, डिफरेंस क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक अल्काइल ग्रुप। इसको मैं अगर डिसोसिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, इट ऑन डिसोसिएशन गिव CH3 CH2 CH2 BH पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, ऐसा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे BH बॉन्ड को डिसोसिएट करता हूं तो मुझे ऐसा मिलेगा। नाउ इसको अगर मैं किसी अल्कीन के साथ रिएक्ट करता हूं, दूसरे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर अल्कीन के साथ रिएक्ट करता तो क्या होगा, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस स्टेट के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये बोरॉन इस कार्बन पर अटैच होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2, क्यों, क्योंकि स्टार CH के पास क्या गया है, हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वो क्या बना CH2, यहाँ पे क्या मिलेगा CH2। अब इस कार्बन को कौन अटैच हुआ है, दिस बोरॉन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोरॉन। बोरॉन के पास क्या प्रेजेंट है, स्टिल इट हैविंग वन हाइड्रोजन, बराबर है, और ये बोरॉन के साथ ये ग्रुप भी अटैच है, मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया, डाइअल्काइल। अब तुम क्या करो, फिर से अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H माइनस और B प्लस, मींस इट कैन रिएक्टेड विद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इस रिएक्शन में देखो H माइनस से B पॉजिटिव, अगेन वी कैन अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल, क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे भी क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे भी क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, M स्टैंड फॉर मार्कोनी, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये कार्बन का पॉजिटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, ठीक है, ये पार्ट बोरॉन पे अटैक किया, इसलिए तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, नाउ इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ले लिया और ये कार्बन यहाँ पे अटैच हो गया, मींस वी कैन ऑब्टेन CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और एक क्या मिला अपने को, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्राइअल्काइल बोरेन, तो यहाँ पे मिला, पहले स्टेप पे देखो ट्राइअल्काइल बोरेन, राइट। नाउ दिस ट्राइअल्काइल बोरेन व्हेन वी अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, अब ऑक्सीडेशन किसके साथ होता है, यहाँ पे H2O2 in presence of OH minus. Now one thing remember, when we dissociate H2O2, that is hydrogen peroxide, हमको यहाँ पे क्या मिलता है, OOHH। इसको डिसोसिएट करने के बाद we can dissociate here, homolytic cleavage can take place because the electronegativity of both oxygen are same, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो रेडिकल। तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या करता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, मतलब क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 CH2 OH, फिर वो इसको ब्रेक करेगा, OH OH, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH, वो क्या करेगा, थर्ड मॉलिक्यूल, इसको हम लोग थोड़ा लेंगे लिखते कि समझने में इजी रहेगा, CH2 CH3, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा, OH, मतलब CH3 CH2 CH2 OH। तो अगर हम लोग ओवरऑल इसको देखते हैं तो क्या मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 OH, राइट, ये पहला मॉलिक्यूल मिला, सेम CH3 CH2 CH2 OH, दूसरा CH3 CH2 CH2 OH, तीसरा, मींस वी कैन ऑब्टेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल प्लस। अब यहाँ पे क्या बचा, B, बोरॉन के पास कितने OH ग्रुप है, 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B
OH/3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं H3PO3, राइट। तो हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ BH3 कैन गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो हमने किसके साथ रिएक्ट किया हुआ है यहाँ पे B2H6, इट डिसोसिएट गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ BH3 अगर 3 अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3 क्या करेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ऑल टुगेदर एक BH3 के लिए 3 है तो 2 BH3 के लिए कितने रहेंगे 6 मॉलिक्यूल। So this is the actual mechanism that can be takes place, but in this mechanism is not in your syllabus. That's why हमको इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बट जिनको कॉम्पिटिटिव फेस करना है they must know the mechanism कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लोगों ने स्टेटमेंट दिया उसके पीछे का लॉजिक है, कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। विदाउट लॉजिक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से तुम लोग वहां पे इस स्लाइड को देख लो, जो मैकेनिज्म मैंने अभी बताया था सेम मैकेनिज्म वहां पे दिया हुआ है, राइट। एक बार मैकेनिज्म तुम लोग पॉज करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझता तो यू जस्ट कॉल मी, राइट। नाउ based on this we can solve some examples, 1 or 2 examples that can be given. Yeah, there are 2 examples. Predict the major product of the following reaction. तो रिएक्शन दिया हुआ है, उसका तुमको मेजर प्रोडक्ट फॉलो करना है, बताना है। I just write the reaction in blackboard, right? तो ये 2 रिएक्शन दिया हुआ है, you just complete that reaction. You just know the reagent and what is the role of reagent. The first reagent क्या लेके हमने B2H6 diborane followed by hydrogen peroxide, means this reaction is called as हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने पहले बताया था यहाँ पे क्या करना है, यू जस्ट नो जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, जहां पे क्या रहेगा लेस नंबर, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि OH ग्रुप का आ जाएगा, इस कार्बन के पास मुझे क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस H3 BO3, राइट। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या रहेगा 6। हियर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, मींस यहाँ पे क्या फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, वाटर डिसोसिएट होने के बाद H प्लस प्लस क्या मिलेगा OH माइनस। नाउ अब देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन सा, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब हमको पता है कि हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखिए, मतलब इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास का जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके क्या आ गया मिथाइल ग्रुप, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ, इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई OH माइनस कैन अटैक ऑन दैट कार्बन, और ये कार्बन क्या करेगा H प्लस साइन देगा, मींस हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, here we can obtain, यहाँ पे क्या मिल जाएगा OH, यहाँ पे क्या मिल जाएगा CH, इसका नाम क्या आएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, आएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, और इसका नाम क्या आएगा, क्या आएगा प्रोपेनॉल, क्या नाम आएगा प्रोपेनॉल, राइट। तो इतना तुमको याद रखना है। तो ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी। एक्चुअली इट कैन फॉलो मार्कोनी बट इट लुक लाइक्स इट कैन फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। So this is the third type of reaction by which we can prepare, we can say that we can prepare our alcohol. Now next we can move on second reaction, that is reduction of carbonyl compound। जो हमने देखा था कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग रिड्यूस करके कैसे अब प्रिपेयर करेंगे वो हम लोग, राइट। कार्बोनिल कंपाउंड मींस व्हाट,
द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनिल कंपाउंड। मींस द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। वी नो दैट ऑक्सीजन हैविंग 4 वैलेंसी, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। Remaining 2 valency can be satisfied by either hydrogen or it can be satisfied by alkyl or aryl group. But this is the general structure of carbonyl group. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो carbonyl group it consists of 1 sigma and 1 pi bond, and pi bond are weak. ना इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखता हूँ, रिडक्शन। तो इसको जब मैं रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पे रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन के डेफिनेशन क्या है? देखो रिडक्शन के 2 डेफिनेशन याद रखना इन ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, इनऑर्गेनिक नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एंड सेकंड वन इज क्या होता है, removal of oxygen. The addition of hydrogen or removal of oxygen is called as reduction. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखते हैं। सो रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोग अगर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड वीक है इसको अगर मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, तो मेरा नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन। पहले डबल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा O। ऑक्सीजन के पास क्या जुड़ गया, H। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक क्या हो गया तुम्हारा H बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन विद OH ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। राइट, अब ये क्या था तुम्हारा, आइदर इट इज अल्डिहाइड और इट इज कीटोन, दोनों में से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। Now during this reaction, यहाँ पे क्या हो रहा है, the sp2 carbon is converted into sp3 carbon। sp2 carbon किस में कन्वर्ट हो रहा है, sp3, because इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, इसके पास क्या प्रेजेंट है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग बाय रिडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, अब रिएक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, टू कैरी आउट एनी रिएक्शन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिएजेंट। रिएजेंट सबसे ज्यादा क्या रहता है, वहां पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस रिडक्शन को करने के लिए हम लोग कौन कौन से रिएजेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट तुमको दिए हुए हैं, तो तुम लोग उस पर फोकस करो। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लो, NiH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत सारे रिएजेंट दिया हुआ है, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। तो जनरली हम लोग ये 2 रिएजेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहला जो रिएजेंट है मेटल कैटालाइज रिडक्शन, और दूसरा जो रिएजेंट है, right, these 2 type of reagent we can use for the reduction. First is metal catalyzed reduction, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं। It can provide large amount of surface area for the reaction. Nickel in presence of H2 is most commonly used, platinum in presence of H2, palladium in presence of H2. Right, platinum is very expensive, that's why we can use nickel, especially we can use Raney nickel. Right, now second type is hydride ion transfer reduction। ये जो reduction है ये किसके प्रेजेंस में होता है, hydride ion, because we know that lithium aluminum hydride and sodium borohydride can provide H minus ion। क्यों होता है, because देखो सोडियम है, बोरॉन है, ये दोनों मेटल है, इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट कैन प्रोड्यूस H माइनस। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या आता है, Al H H H H। राइट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे आता है तुम्हारा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा Li पॉजिटिव। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, एज अ H माइनस। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट, so these are the 2 reagent we can use to convert
aldehyde or ketone into alcohol. So in first case, we can see aldehyde on reduction, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ aldehyde. Reduction of aldehyde. तो aldehyde on reduction always give primary alcohol. एक चीज दिमाग में डाल लो, aldehyde को जब भी हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, प्राइमरी अल्कोहल. फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं CH3C double bond OH. This is the acetaldehyde. इसको अगर मैं H2 के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड हीट, निकेल यूज करेंगे तो हीट करना पड़ेगा, बट प्लैटिनम पैलेडियम में हीट करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली प्लैटिनम और पैलेडियम इज मोर एक्यूरेट रिएजेंट, बट ये कॉस्टली होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, निकेल यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके HH जोड़ देगा तो क्या मिलेगा, वी कैन ऑब्टेन CH3CH2OH. अब यहाँ पे इसलिए क्या है, कार्बन टू ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या रहेगा, OH. अब यहाँ पे OH ग्रुप इसका एक ही कार्बन पे अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल. तो ऑलवेज रिमेंबर aldehyde on oxidation can give primary alcohol. फ्रेंड, इसका हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं CH3CH2C double bond OH. अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, दूसरा रिएजेंट लेता हूँ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से इट कैन रिलीज H- आयन. H- को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन. H- को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड आयन यहाँ पे बोला जाता है. इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इट इज पोलर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा. ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव. तब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा. आफ्टर अटैक हमको क्या मिलेगा, यहाँ CH3CH2CO-H, यहाँ पे H. अभी यहाँ पे क्या मिला, O-. अब इसको अगर मैं क्या करता हूं, H3O पॉजिटिव. एक्चुअली H3O पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, H प्लस इन वाटर, बिकॉज वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो तुरंत H प्लस आयन को ले लेगा. इट इज द सोर्स ऑफ H प्लस आयन. OH माइनस क्या करता है, यहाँ पे H प्लस आयन को लेके क्या बनाएगा, CH3CH2CH2. फिर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिडक्शन, CH3CH2CH2. In hydride ion transfer reduction we can obtain alcohol, but hydride ion में क्या होता है, followed by protonation is required. So always remember aldehyde on reduction can give primary alcohol. Right, now let's see about the ketone. Next is ketone. तो ketone always on reduction can give secondary alcohol. Ketone हमेशा क्या देगा, it can give secondary alcohol. अब कैसे देगा, we just take one example of ketone. CH3C double bond O CH3, क्या लिया हमने, एसीटोन. CH3C double bond O CH3, इसको हम लोग H2 के साथ रिएक्ट करते हैं in presence of, here we can take palladium मेटल. सो पैलेडियम अगर लेंगे तो 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही हमारा रिएक्शन होगा. वी कैन नॉट यूज हायर टेम्परेचर, मुझे हीट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HH CH3 CH OH CH3. तो क्या मिला, this carbon is a secondary because it is attached with the two other carbon atom. तो हमको यहाँ पे क्या मिला, secondary alcohol. We can obtain secondary alcohol, right? So we take another example. Suppose CH3 CH2 C double bond O CH3. अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, H2, यहाँ पे सॉरी हमने क्या यूज किया,
LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यहाँ पे यूज किया है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको यहाँ से ब्रेक, अब वी नो दैट ये कार्बोनिल कार्बन है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा अपने को CH3 CH2 COH, यहाँ पे O माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3। इसको फर्दर अगर हम लोग H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करते हैं, इट्स द सोर्स ऑफ H प्लस, नेगेटिव H प्लस को लेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 CH2 CHOH CH3, क्या मिला अपने को सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑलवेज रिमेंबर aldehyde on oxidation can give primary alcohol, ketone on oxidation give secondary alcohol, right? In this way we can prepare alcohol from aldehyde and ketone. So always remember primary alcohol can give, sorry, aldehyde on reduction can give primary alcohol and ketone on reduction give secondary alcohol. Okay, so I hope you can understand this reaction, right? We can explain detailed mechanism of hydroboration, oxidation as well as this reaction, right? So today we can stop here. In next class we can discuss about preparation of alcohol from by reduction of carbonyl compound, but we can use carboxylic acid, right? Or it may be possible we can discuss in the in this video also, right? Let me try to finish this topic also. Okay, so we can stop here today. In next class we can discuss about preparation of alcohol by reduction of carboxylic acid as well as their limitations of the reduction of carbonyl compound, right? I hope you can understand all this topic. So see you in next video. If you like my videos, please subscribe my channel and also tell your friends to subscribe my channel, so that during this lockdown period many students can get benefit of these videos. Okay, so thank you and have a nice day.